So the sixth question is, which of the following is most appropriate next step? A 54-year-old man presents to emergency department with central crushing chest pain radiating to his left arm. He smokes 20 cigarettes per day and takes no regular exercise. He has not seen his general practitioner for 6 months after he was told that he may have to commence antihypertensive medication. On examination, his BP is quite normal and pulse is 66 per minute and regular. There are bilateral basal crackles on auscultation of the chest. Now, on the ECG, he is having lateral ST depression and troponin I is 0.42 nanogram. The normal is around 0.1 नैनोग्राम पर ml. सो इस क्वेश्चन में सिंपली पेशेंट को एम हो गया है और जो एम है ECG पे आपका ST डिप्रेशन है मगर ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव है. तो ये कौन सा एम है? दिस इज अ नॉन ST एलिवेटेड एम नॉन स्टेमी. नॉन स्टेमी में इस पेशेंट को एस्पिरिन दी गई है, क्लोपिडोग्रिल दी गई है, फोंडापेरानिक्स, नाइट्रोग्लिसरीन एंड मॉर्फिन दी गई है एंड हिज ECG अपीयरेंस हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड. ये दवाई देने के बाद भी द पेशेंट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड on non-ST elevated MI. So which of the following is most appropriate next step? Add bisoprolol, add warfarin, continue current therapy and percutaneous coronary intervention or thrombolysis. See, इस क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है नॉन ST एलिवेटेड MI की और पेशेंट फिर भी इंप्रूव नहीं हो गया है, इसकी हार्ट रेट नॉर्मल ही है, तो उसमें बिसोप्रोलॉल ऐड करके कोई ऐसा फ़ायदा होने वाला नहीं है. सो वारफेरिन तो हम यूज़ नहीं करते हैं MI की ट्रीटमेंट में. कंटिन्यू करंट थेरेपी तो यूज़ नहीं होगी. PCI और थ्रोम्बोलाइसिस में आप कंफ्यूज हो सकते हो. PCI हम नॉन ST एलिवेटेड या ST एलिवेटेड MI हो दोनों में कर सकते हैं, बट थ्रोम्बोलाइसिस इज ओनली डन इन ST एलिवेटेड MI. सो थ्रोम्बोलाइसिस भी इस ऑप्शन में नहीं होगा. इसमें परक्यूटेनस कॉर्नरी इंटरवेंशन ही करनी पड़ेगी क्योंकि नॉन ST एलिवेटेड MI है. अगर स्टेमी होता हम थ्रोम्बोलाइसिस करते अगर अराउंड विंडो पीरियड के टाइम आ जाता पेशेंट, और यहाँ ऐसा मेंशन भी नहीं किया गया है कितना टाइम हो गया है क्या हुआ है. सो परक्यूटेनस कॉर्नरी इंटरवेंशन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द सेवेंथ क्वेश्चन. Which of the following is most appropriate next step? Same, and next step देखना है. A 72-year-old man is admitted to emergency department having suffered a collapse after his usual swimming pool session at the local pool. He says he felt lightheaded after getting out, and the one thing he remembers is waking up surrounded by people. Observers suggested he had a brief period of twitching for around 20 seconds. There is a history of hypertension for which he takes Ramipil 10 mg daily, but nil else of note. His blood pressure in the emergency department is 165 by 110. And with pulse 85 per minute and regular. There is an ejection systolic murmur radiating to carotids, but he is not in a cardiac failure. So on investigations हम देखते हैं chest X-ray में is having cardiomegaly. On ECG we see that the left ventricular hypertrophy is present. Okay, as such बाकी investigations quite normal ही है. Which of the following is most appropriate next step? Angiography, 24-hour electrocardiogram, ecocardiogram, electroencephalogram और stress test. So what is the diagnosis in this question? Diagnosis है क्या इस क्वेश्चन में? एक 72-year-old मैन को कोलैप्स हो गया आफ्टर हिज यूजुअल स्विमिंग पूल सेशन एट द लोकल पूल. कोलैप्स होना स्विमिंग पूल सेशन या किसी भी एक्सरसाइज के बाद और लाइट हेडेड फील होना, शॉर्ट में एक सिंकोपल अटैक आफ्टर एनी फिजिकल एक्सर्शन, आफ्टर एनी एक्सर्शनल एक्टिविटी, आफ्टर एनी एक्सर्शनल एक्टिविटी. Plus there is an ejection systolic murmur. तो ejection systolic murmur कब हो जाएगा? क्योंकि इसका कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो चुका है. इस पेशेंट में एओर्टिक स्टेनोसिस है. एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट है वो रिड्यूस हो गया है. कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से ब्रेन में परफ्यूजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो पेशेंट को कोलैप्स हो रहा है या सिंकोपल अटैक हो रहा है. और यहाँ पे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर दिया गया है जो रेडिएट हो रहा है कैरोटिड में. दिस इज द स्पेसिफिक फाइंडिंग दैट इज सीन इन एओर्टिक स्टेनोसिस. एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी हो गया है और कार्डियोमेगैली भी हो गया है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? अब आपने ECG भी किया है, चेस्ट एक्सरे भी किया है. अगर आप अब एंजियोग्राफी करोगे, एंजियोग्राफी तो यूजुअली हम इसमें नहीं करेंगे, वो हम कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में करेंगे. 24-hour इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये भी हम इसमें नहीं करेंगे. इकोकार्डियोग्राम करके अगर हम देखेंगे तो हमें एओर्टिक वैल्वुलर ग्रेडियंट हम देख सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कितना ये नैरो हो चुका है, कितना ग्रेडियंट अभी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं. इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम जो होगा ये हम यूजुअली एपिलेप्सी में करते हैं, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है. एंड स्ट्रेस टेस्ट भी इसमें हम नहीं करते, तो इसमें हम इकोकार्डियोग्राम करेंगे, वैल्वुलर ग्रेडियंट चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी ऑफ द लाइकली डायग्नोसिस? तो इसमें हमें मोस्ट कॉमन कॉज देखना है कि क्या होगा. A 30-year-old man is seen in the cardiology clinic for screening. He has been experiencing chest pain and shortness of breath. Particularly when exercising, fatigue and dizziness. He also admits to have swollen ankles and legs. His brother experienced similar symptoms and recently died suddenly from a heart condition. And
Echocardiogram shows a 20 millimeter asymmetrical septal wall thickness with systolic anterior motion of the anterior mitral valve leaflet. Outflow gradient is 24 millimeters of mercury. सो ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगता है आप सबने गैस कर ही लिया होगा कि इसका जो डायग्नोस हो रहा है वो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पेशेंट में ऑलरेडी एक फैमिली हिस्ट्री है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, पहली बात। सेकेंड थिंग, इस पेशेंट में जो कंप्लेंट्स हो रहे हैं, जो उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, वो एक एक्सरसाइज या किसी एक्सर्शनल एक्टिविटी के बाद हो रहे हैं। और उसके बाद इकोकार्डियोग्राम में आपको ऑलरेडी बोला गया है कि इसकी 20 मिलीमीटर सेप्टल वॉल थिकनेस है, तो इसका जो सेप्टम है वो थिक हो गया, जिसकी वजह से सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ द mitral valve leaflet भी, आउटफ्लो ग्रेडियंट भी 24 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है, वो भी रिड्यूस हो गया। सो ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉमन एटियोलॉजी हमें इसकी देखनी है। सो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है ये यूजुअली क्यों हो जाती है? हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो हो जाती है ये हो जाती है क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है सार्कोमेयर प्रोटीन की। सार्कोमेयर प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में, उनमें म्यूटेशन हो जाती है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें से बीटा मायोसिन हैवी चेन, बीटा मायोसिन हैवी चेन एंड मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो प्रोटीन्स आपको याद रखने हैं, बीटा मायोसिन हैवी चेन एंड मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी। इनमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सेप्टम होता है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाता है, वो थिक हो जाता है। जब वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक हो जाएगा, नॉर्मली अगर आप देखेंगे ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। नॉर्मली इस हार्ट में अगर आप देखोगे सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ ये सेप्टम जो है ये थिक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद तो एओर्टा होता है, एओर्टा से तो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस सेप्टम की थिकनेस की वजह से ये आयोटा पे जो प्रेशर पड़ेगा, इसकी वजह से आयोटा का जो ल्यूमन होगा ना वो नैरो हो जाएगा, तो आपका ऑलरेडी कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सेप्टल थिकनेस हो जाती है ना, ये ओवरऑल पूरे आपके वेंट्रिकल को ऑक्यूपाई करती है। ये थिकनेस हो जाएगी, यहाँ से भी सेप्टल थिकनेस हो जाएगी। तो नॉर्मली होता क्या है इसमें? नॉर्मली इसमें क्या हो जाएगा, जब वेंट्रिकुलर सेप्टम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ना, इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो कॉम्प्लियंस होता है ना, यानी ब्लड आना चाहिए इसमें, जब डायोस्टोल होगा, जब वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, तो वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कम ब्लड इसमें आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो कॉम्प्लियंस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इसमें अब कम ही ब्लड ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो इस कम ब्लड ऑक्यूपाई होने की वजह से आपका ऑलरेडी स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट ये भी रिड्यूस ही हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें हमारा डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। सो जब भी हम हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तब हम एग्जामिनेशन करते हैं। ऑन एग्जामिनेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हो, जैसे कि इस पेशेंट में डबल एपिक्स बीट होती है, डबल एपिक्स बीट। कभी कभी आपको जर्की पल्स भी मिलती है। प्लस ऑन एग्जामिनेशन आपको एक मर्मर भी सुनाई देता है, जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, सेम जैसे आपने एओर्टिक स्टेनोसिस में पढ़ा, इसमें भी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है। पर इस इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर की खासियत ये है कि ये इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है ऑन वैल्सल्वा, वो रिड्यूस हो जाता है जब भी आप स्क्वाट्स करते हैं। वैल्सल्वा में ये इंक्रीज इसीलिए हो जाता है क्योंकि वैल्सल्वा के टाइम क्या हो जाता है, हमारा प्रीलोड जो हो जाता है वो कम हो जाता है, यानी वेनस रिटर्न कम हो जाता है। और स्क्वाटिंग के टाइम हमारा आफ्टर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये स्क्वाटिंग के टाइम रिड्यूस्ड हो जाता है। सो इसमें जब भी आप ईसीजी करेंगे, ईसीजी में आपको एक स्पेसिफिक फाइंडिंग मिलती है, इसमें ऑन ईसीजी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है आपको हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। ऑन ईसीजी हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में आपको सबसे पहले जो होती है क्यू वेव्स, ये डीप क्यू वेव्स मिलती है आपको एंटीरियर इन्फीरियर लीड्स में। सो पार्ट 1 में एमआरसीपी पार्ट 1 में यूजुअली इमेज नहीं दी जाती है, तो इसीलिए हम इसमें इमेज सेशन कवर नहीं कर रहे ईसीजी का। पर फिर भी आपको याद रखना है कि जो क्यू वेव्स होती है वो बहुत डीप होती है इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट होती है आप पहले हार्ट को रिलैक्स करो, हार्ट रेट आप इस पेशेंट की कम करो, ताकि, क्योंकि यूजुअली एथलीट्स में हो जाता है, तो आप बीटा ब्लॉकर दे सकते हो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। उसके बाद जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती है वो हमेशा आईसीडी होती है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर्स हम इसमें यूज़ करते हैं। सो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है जिसमें सार्कोमियर प्रोटीन जीन की म्यूटेशन हो जाती है, यूजुअली 2 जीन्स होते हैं, बीटा मायोसिन हैवी चेन एंड मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी। ऑन एग्जामिनेशन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में आपको डबल एपेक्स बीट, जर्की पल्स और मर्मर सुनाई देता है, जो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, जो इंक्रीज हो जाता है वैल्सल्वा के टाइम और डिक्रीज हो जाता है ऑन स्क्वाटिंग। सो जब भी आप ईसीजी करेंगे, क्यू वेव्स आपको बहुत डीप क्यू वेव्स मिलेगी ऑन एंटीरियर इन्फीरियर लीड्स, और ट्रीटमेंट जो होती है वो बीटा ब्लॉकर होती है फर्स्ट लाइन, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज आईसीडी, ठीक है। उसके बाद हमेशा जब भी आप हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे हिज ब्रदर एक्सपीरियंस सिमिलर सिम्टम्स एंड रिसेंटली डाइड सडनली फ्रॉम अ हार्ट कंडीशन। सो कभी भी जब भी आपके पास लगे कि नहीं, समझो किसी में
फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की, आपको हमेशा इसके लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए फैमिली मेम्बर्स की। स्क्रीनिंग के लिए जो हम करते हैं यूजुअली हम रेस्टिंग ईसीजी कर सकते हैं और वी कैन डू ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम। हम जब भी सेप्टम देखना चाहते हैं तो हमारा बेस्ट रहता है ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम। और अगर आपको वेल्व्स देखनी है, वेल्व्स देखने के लिए हम ट्रांस इसोफेजल इकोकार्डियोग्राम करते हैं। सो यहाँ पे कॉमन एटियोलॉजी ऑफ लाइकली डायग्नोसिस एएल एमाइलोडोसिस, एंडरसन फेब्री डिजीज, फ्राइडेट अटैक्सिया, इडियोपैथिक और सार्कोमेरिक प्रोटीन जीन म्यूटेशन। अब आपको पता चल ही गया कि जीन म्यूटेशन सार्कोमेरिक प्रोटीन जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, तो मोस्ट कॉमनली ये राइट आंसर है। पर ये सारे जो है ये सारे एसोसिएटेड होते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के साथ, पर इनकी जो एसोसिएशन होती है वो उतनी नहीं होती है जितनी एक जीन म्यूटेशन की होती है। ये एटलीस्ट लेस देन 10% एसोसिएटेड होते हैं। इसमें से फ्राइडेट अटैक्सिया इंपॉर्टेंट है और एंडरसन फेब्रीज डिजीज भी इंपॉर्टेंट है। एंडरसन फेब्री डिजीज में अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए की जो होती है डेफिशिएंसी होती है, और फ्राइडेट्स अटैक्सिया में हम आगे जाकर पढ़ेंगे फ्राइडेट्स अटैक्सिया में क्या होता है। सो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में इतना सब आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कौन सी ड्रग्स हमें अवॉइड करनी है टू बी अवॉइडेड इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कोई क्लिनिकल सिनेरियो आ सकता है, वो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का होगा और उसमें पेशेंट को ये ड्रग्स दी गई होगी तो उसकी कंडीशन डिटोरेट हो जाएगी। सो आपको बोलेंगे कि क्या कॉज था। सो आपको 3 ड्रग्स याद रखनी है जो हमें नहीं देनी होती है, ड्रग्स जो अवॉइड करनी है हाइपरट्रॉफिक में। एक है नाइट्रेट, सेकेंड इज एसी इनहिबिटर्स, थर्ड इज आइनोट्रॉप्स। नाइट्रेट इसीलिए नहीं क्योंकि ये प्रीलोड कम करेगी, ये आपका आफ्टर लोड भी कम करेगी। एसी इनहिबिटर हम किसी भी कंडीशन में नहीं देते जहाँ पे भी नैरोइंग या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जैसे आपने रेनल आर्टरी स्टेनोसिस पढ़ा होगा, कोआर्केशन ऑफ आयोटा पढ़ा होगा, बाइकस्पिड आयोटिक वाल्व पढ़ा होगा, इन सब में एट लास्ट नैरोइंग ही हो रही है, तो कभी भी हमें उसमें एसी इनहिबिटर्स नहीं देनी है जहाँ पे भी नैरोइंग होगा प्लस आपका हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। और सेम आइनोट्रोप भी आपको नहीं देने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आता है एग्जाम में। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज रिपीटेडली asked in MRCP exam. Okay. Now let's do the ninth question. What is the likely diagnosis? So, what is the likely diagnosis? A 50-year-old woman is referred to the outpatient department for previously asymptomatic atrial septal defect. She is new to the area and was last seen around 10 years ago in her previous local hospital. She is a smoker but without other significant medical history. She now complains of shortness of breath on exertion together with peripheral edema. Clinical examination reveals her to be clubbed and cynosed. Her pulse rate is 90 beats per minute and blood pressure is 98/60. Echo demonstrates dilated right heart with estimated right ventricular pressure of 90 millimeters of mercury and significant tricuspid and pulmonary regurgitation. So, what is the likely diagnosis? Cor pulmonale, Eisenmenger syndrome, infectoendocarditis, primary pulmonary hypertension, or pulmonary embolic disease. So, इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, तो पेशेंट का ऑलरेडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है और नाउ शी इज कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड टुगेदर विद द एडिमा और क्लबिंग और साइनोसिस भी प्रेजेंट है। नॉर्मली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्लबिंग एंड साइनोसिस होना यूजुअली नहीं होता है क्योंकि इट इज़ एन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या हो जाता है, यूजुअली हमारा जो लेफ्ट टू राइट शंट होता है वो हो जाता है। सो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से क्लबिंग एंड साइनोसिस नहीं हो जाती है। मगर अगर आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट से, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से जो लेफ्ट टू राइट शंट होगा वो अब राइट टू लेफ्ट शंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, सारा राइट टू लेफ्ट शंट डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स हो जाएगा विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपकी पूरी बॉडी में जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको क्लबिंग साइनोसिस के फीचर्स मिलेंगे। सो ये आइसेनमेंगर सिंड्रोम हो जाता है। सो इस क्वेश्चन में आइसेनमेंगर सिंड्रोम ही बेस्ट आंसर है। कॉर्पल्मोनेल इसीलिए नहीं है क्योंकि कॉर्पल्मोनेल का रेस्पिरेटरी कोई कॉज तो नहीं दिख रहा है इसमें। आइसेनमेंगर सिंड्रोम है, इनफेक्ट एंडोकार्डाइटिस भी नहीं हो सकता, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज अ सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है क्योंकि ऑलरेडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है एक कॉज सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, और पल्मोनरी एम्बोलिक डिजीज तो नहीं है। सो बेस्ट आंसर इज आइसेनमेंगर सिंड्रोम। Now the 10th question is, which cardiac abnormality is she likely to have? A 28-year-old woman who is known to have a cardiac murmur becomes pregnant. It is noted that the intensity of her murmur diminished during her pregnancy. ऐसा कौन सा मर्मर है जो प्रेगनेंसी के टाइम कम हो जाता है? सो देखिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में ऑलरेडी प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन जो होते हैं ये वैसो डायलिटेशन करते हैं। क्या करते हैं, वैसो डायलिटेशन करते हैं।
जिस वैसोडाइलेटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, आपका आफ्टर लोड कम हो जाएगा। नॉर्मली जब आर्टरी जो हो जाएगी वो डायलेट हो जाएगी तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा। आफ्टर लोड कम हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन का जो मर्मर होगा वो कम हो जाएगा। प्लस जब भी आप प्रेगनेंसी में देखेंगे, प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, इंफीरियर वेना कावा की कंप्रेशन हो जाती है, जिसको हम स्पाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा कंप्रेशन हो जाती है तो वेनस रिटर्न भी कम ही हो जाता है। तो ऑलरेडी हार्ट में जो वेनस रिटर्न होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रीलोड भी कम हो जाता है। सो इन दो कंडीशंस की वजह से जो आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर होगा वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो इन प्रेगनेंसी एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर जो हो जाएगा उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी इन दो रीजंस की वजह से। और ऑलरेडी प्रेगनेंसी में हेमोडाइल्यूशन भी हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। सो ऑलरेडी ब्लड की जो डाइल्यूशन हो जाती है उसकी वजह से भी मर्मर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। सो ये रीज़न होता है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर इसमें रिड्यूस हो जाता है। 11th क्वेश्चन है, राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो ये एक सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें आप मतलब ऊपर वाला पार्ट नहीं भी पढ़ सकते हो और आप सीधे राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इन सबको पढ़ के आप एक्सक्लूड कर सकते हो। जब भी राइट वेंट्रिकुलर एमआई होता है, राइट वेंट्रिकुलर एमआई का मतलब होता है इन्फीरियर एमआई, ओके। सो हमने पढ़ा इन्फीरियर एमआई में 2-3 AVF लीड जो होती है उसमें ST सेगमेंट एलिवेशन होता है, ठीक है। ओक्लूजन ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी तो राइट साइड में नहीं, राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी होगी। मार्क्ड पल्मोनरी वैस्कुलर कंजेशन, मार्क्ड पल्मोनरी वैस्कुलर कंजेशन राइट साइडेड एमआई में नहीं होगा। हालांकि एमआई में क्या हो जाएगा, एमआई में जब हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होगा ना, समझो राइट वेंट्रिकल है, ये एमआई हो चुका है, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व से सारा ब्लड जो जाएगा वो वापस जाएगा, और ये सारा जो जाएगा ये आपकी जेवीपी में क्या हो जाएगा, जेवीपी जो हो जाएगी आपकी पैराडॉक्सिकली राइज हो जाएगी ऑन इंस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं कुस्मोल साइन, जो यूजुअली कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में भी देखते हैं, ठीक है। सो कुस्मोल साइन प्रेजेंट होगा इसमें। सो मार्क पल्मोनरी वैस्कुलर कंजेशन नहीं होगा, राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, एब्सेंट कुस्मोल साइन भी नहीं होगा क्योंकि कुस्मोल साइन प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। किसी भी कंडीशन में जहाँ पे आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट डैमेज हो जाता है वहाँ पे आपका पैराडॉक्सिकल जेवीपी राइज हो जाएगा ऑन इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से आपका कुस्मोल साइन पॉजिटिव होता है। नॉर्मली इंस्पिरेशन में जेवीपी फॉल हो जाता है क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, वेनस रिटर्न जो हो जाता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जेवीपी फॉल हो जाता है। सो द बेस्ट आंसर इज ST सेगमेंट इज एलिवेटेड इन 2-3 AVF राइट साइडेड एमआई में, ओके।